ਅਸੀਂ 3E ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3E ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ এনवायरमेंट, ਸੈਕੰਡ E ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਥਰਡ E ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਬਾय ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ नहीं कर पा रहा हेल्प, वो अपने आप में मेरा सेल्फ डाउन होता। ये जितने भी बच्चे हैं ना, एक्चुअली क्या है कि ये प्रवासियों के बच्चे हैं। यहाँ पे जो लोग किसी कोठी में जाके काम कर रहे हैं या जिनके पापा सुबह उठ के फैक्ट्री में जा रहे हैं या दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं। इनमें से तो कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनकी माँ बीमार होती है तो माँ के बदले कोठी में जाते थे काम करने, तो फिर उनको भी कंट्रोल किया हमने और वही सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और यहाँ पढ़ाया जा रहा है। जैसे बच्चे आने शुरू हो गए आपके पास, कि उनमें चेंजेस दिखे आपको? बिल्कुल चेंजेस दिखे हैं। इवन एक बच्चे की कहानी मैं बताऊँ, मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जो एक हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव एक तरीके की डिजीज है जिसे कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है बहुत महंगे मेडिकल प्रोसेस से निकलना पड़ता है, बट वो बच्चा इसी भीड़ में बैठा हुआ आप पहचान पाओ तो पहचान लो, वो नॉर्मल पढ़ रहा है। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 올ਡ ਕਲੋਥਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੱਟਿਆ ਫੱਟਿਆ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੈਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਡੰਪਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬੈਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ NGO ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ NGO ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। मेरा नाम गौरव सिंह है ਤੇ NGO ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਿਚ ਫॉर ਚੇਂਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ NGO ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, NGO ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ NGO ਚਲਾਉਂਦੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ 2018 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ 3E ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3E ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ এনवायरमेंट, ਸੈਕੰਡ E ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਥਰਡ E ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਬਾय ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਵੇਸਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੇਜ 300 ਤੋਂ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਾਈਕਲ ਅਪਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ये जितने भी बच्चे हैं ना, एक्चुअली क्या है कि ये प्रवासियों के बच्चे हैं। यहाँ पे जो लोग किसी कोठी में जाके काम कर रहे हैं या जिनके पापा सुबह उठ के फैक्ट्री में जा रहे हैं या दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके बच्चे हैं। इनमें से तो कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनकी माँ बीमार होती है तो माँ के बदले कोठी में जाते थे काम करने। ठीक है, फिर उनको भी कंट्रोल किया हमने और वही सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और यहाँ पढ़ाया जा रहा है उनको।
कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सड़कों पे मांगते भी होंगे। हाँ, एक एक बच्चा इसमें ऐसा था, अभी भी होगा शायद, आया कि नहीं आया आज मुझे नहीं आया, नहीं आज वो अभी। तो वो एक बच्चा ऐसा था कि उसके माँ बाप सुबह उठ के काम पे चले जाते थे, दोनों भाई बहन। उस बच्चे को कोई ना कोई अपने नशे के चक्कर में उसे उठा के ले जाता था बस अड्डे पे, उससे भीख मंगवाता था। जो भी पैसे कलेक्ट होते थे उसमें से उसने 5-10 रुपए की उसे बिस्किट ले देनी, और वो इस तरीके से बंक भी मारता है। आज अगर उसने बंक मारा है तो मुझे उसका देखना पड़ेगा कि कहीं वो उधर हो ना हो। पर जैसे बच्चे आने शुरू हो गए आपके पास, कि उनमें चेंजेस दिखे आपको? हाँ, बिल्कुल चेंजेस दिखे हैं। इवन एक बच्चे की कहानी मैं बताऊं, मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जो एक हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिव एक तरीके की डिजीज है जिसे कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है बहुत महंगे मेडिकल प्रोसेस से निकलना पड़ता है। बट वो बच्चा इसी भीड़ में बैठा हुआ, आप पहचान पाओ तो पहचान लो, वो नॉर्मल पढ़ रहा है। ठीक है। तो जब आप देखते हो कि एक बच्चे की ज़िंदगी में आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी है, तो कैसा लगता है? मुझे खुशी होती है। एक्चुअली बचपन से एक विजन था कि मैं कुछ करके जाऊं। ठीक है, और मुझे ये नहीं है कि मेरे सामने मेरी कहानी क्या है, मेरे बाद मेरी क्या कहानी क्या है, वो इम्पेक्ट करेगी। जी। तो सर, जैसे आप लोगों की वजह से इन बच्चों का जो फ्यूचर है थोड़ा सा हम कह सकते हैं क्लियर हो जाए, है ना? पर खुद की लाइफ आप कैसे, मतलब खुद भी काम करते हो, अपना जो खर्चा है वो कैसे चलाते हो? वो अपने स्किल्स से, लाइक कई मेरे फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया हैंडलिंग या ऐसे कुछ काम दे देते हैं मुझे। उसके अलावा कुछ सॉन्ग्स वगैरह राइट कर लेता हूँ। अच्छा। तो उससे अभी लास्ट तो कुछ महीनों से उससे ही खर्चा चल रहा है। तो मल्टी टैलेंटेड हो वैसे। बस कह सकते हैं ऊपर वाले ने और हालात ने बना दिया। तो ये वो जैसे आप इनकी ज़िंदगी अच्छी करने के लिए आप काम कर रहे हो, वैसी आपकी ज़िंदगी पहले अच्छी थी या आपको भी कुछ स्ट्रगल वगैरह करना? एक्चुअली मैं भी प्रवासी हूँ। मैं अगर देखूँ तो मैं बिहार के से आया यहाँ पे, और आने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ ईजी रही। हर प्रोसेस से निकला। इसी लुधियाने के अंदर मैंने 1600 रुपये महीने से नौकरी स्टार्ट करी थी। और उस टाइम मुझे याद है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं जाके कंप्यूटर एकेडमी में एडमिशन लूँ और कुछ सीखूँ। ठीक है, तो फिर लुधियाने से एक बार मैं दिल्ली भी गया, वहाँ मैंने कुकिंग भी सीखी, कंप्यूटर भी सीखा काम करने के दौरान है। तो वो स्ट्रगल वाली लाइफ रही, उसने सिखा दिया कि हमने या मैंने जो स्ट्रगल फेस किया है वो मेरे जैसे कोई और बच्चे फेस ना करें। जी। जैसे आपको थोड़ी सी दिक्कत आई जैसे, पर जो आपने सीखना चाहा कि आपने वो थोड़ा सा मंजिल आपने लगता है कि हासिल कर ली है, चाहे जितनी भी कठिनाई आई हो? बिल्कुल, मैं अभी भी सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। मेरी आदत है कि हमेशा अगर एक ही चीज़ मैं रेगुलर करूँगा तो मैं बोर हो जाऊँगा। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ, तो डेली सीख ही रहा हूँ अभी तो। पेरेंट्स का कैसे रिएक्शन रहा? पेरेंट्स स्टार्टिंग में तो रिएक्शन थोड़ा सा रहा कि यार ये अचानक से शिफ्ट कैसे हो रहा है, एक प्रोफेशनल से ये इस फील्ड में कैसे आ रहा है। बट मेरा मानना ये है कि यूनिवर्स एक रूल पे चलती है, और वो रूल ये है, बी अ गिवर। जो आप यूनिवर्स में देंगे वही आपको वापस मिलेगा। जी जी जी। ठीक है, तो पहले यूनिवर्स आपको कहता है गिव, बट हम क्या होते हैं कि पैदा होने से ही टेक 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 सोच रहे हैं, और गिवर का हमारा कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो यहाँ मैंने उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट किया और बहुत खुशी मिलती है कि उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। जी जी जी। जैसे बच्चों ने आपने बताया कि बच्चे बहुत अलग अलग जगह से आए हैं, तो किस तरह की कोई बहुत परेशानी जो आपको फेस करनी हो? नहीं, कई बार लैंग्वेस्टिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कई बच्चे नेपाल के भी होते हैं। अब क्या है कि स्कूल में तो आप 2-4 घंटे उससे हिंदी या पंजाबी में बात कर लो, जी जी जी। बट उनकी फैमिली की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है ना, वो नेपाली रहती है। बट बाय गॉड ग्रेस कि मेरा इन सब जगहों पे धक्का, जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी में आपने धक्के खाए हुए जी जी हैं, जी। तो खाया हुआ है। मैं इनकी कम्युनिकेशन की लैंग्वेज भी समझ लेता हूँ, तो इनको समझाना मेरे लिए कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं होता। पर कहाँ कहाँ से हैं बच्चे? ये कोई यूपी के बच्चे हैं, कुछ बिहार के हैं, कुछ नेपाल के भी हैं हमारे पास, कुछ एमपी वाले हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया से ही होंगे और नेपाल से। जी। जो बच्चों में आप भी साथ में हो, कितने लोग हो आप पूरी टीम में अगर? 5 to 7 पीपल हैं यहाँ पे। तो आपने शुरुआत की तो कैसे जुड़े फिर आपकी टीम्स जो बनी है? बस वो कारवां बनता गया, आपने वो सुना ही है। जी जी। तो ऐसे आप ज़रूर बताइए कैसे जुड़े इस टीम के साथ? मेरी सर से मुलाकात हुई तो मेरे को उनका थॉट प्रोसेस अच्छा लगा, और वैसे भी यही कुछ विजन था कि कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है, तो थॉट्स मैच करी तो अब साथ में काम कर रहे हैं। जी जी जी। पर ना मन को थोड़ी बहुत तो होता है ना कि काश अगर सरकार इनकी तरफ से
इनकी तरफ कुछ और स्टेप करती तो ज़रूर ज़रूर आप हंस रहे हो, ज़रूर बताइए इस चीज़ पे कहीं ना कहीं कमी रह रही है, तब हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ करें। मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। एक कि सरकार के भरोसे मत बैठो, क्या पता सरकार तुम्हारे भरोसे बैठी हो। ठीक है। दूसरा क्या सीन है ना कि मैंने एक देखा है यहीं लुधियाने में रहते हुए कि शहर की दीवारें बहुत खूबसूरत बनाई गई जब हमारे लुधियाने का नाम स्मार्ट सिटी के अंदर आया था। ग्राफिटी पेंटिंग हुए और सडनली फिर पता लगता है कि एक इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में क्या हुआ, उन दीवारों का क्या किसी ने कभी देखा जाके? उस पे नेताओं के पोस्टर लगे हुए थे। तो जब ये शहर को साफ रखने वाले लोग ही शहर की दीवारों को गंदा कर रहे हैं जी तो वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए आपको पता है। तो मैं एक्चुअली पर्सनली तो मैं जूते घिसने वाला नहीं हूँ, मैं अपने काम से रिजल्ट क्रिएट करने वाला हूँ। जी 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 ठीक है। तो मैं जो सॉल्यूशन देखता हूँ मेरे को लगता है कि हाँ मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उतना कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट या इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने में कितने जूते घिसने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ्रेशर हूँ। ठीक है, मैंने घिसे भी हैं जूते, लेकिन उसके बाद सिर्फ अपने सॉल्यूशंस पे फोकस हूँ और काम कर रहा हूँ। जी जी मैंने सुना आप काफ़ी क्रिएटिविटी भी हो, जैसे क्रिएटिविटी बड़ी आपने दिखाई हुई है। इन बच्चों के लिए जो आपकी क्रिएटिविटी है, इन बच्चों को भी हेल्प करते हो उस चीज़ के लिए? बिल्कुल, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी वीकेंड में यहाँ पे, जिसमें बच्चे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में हमारी भी हेल्प करते हैं और उनके अंदर एक स्किल्स भी आता है। लाइक वेट वेस्ट मैनेजमेंट है, किसी के पापा जूस बना रहे हैं तो हमने उनको सिट्रस फ्रूट के बायो एंजाइम बनाने सिखा दिए। अब वो बच्चा बायो एंजाइम भी बना रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि मेरे पास जो 8वीं या 10वीं तक के बच्चे होंगे वो अपने माँ बाप के सपोर्ट में होंगे, फाइनेंशियल भी और अपने एजुकेशनल सपोर्ट का खर्चा खुद निकालेंगे। जी 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 प्लानिंग मेरी ये है कि मैं इतना फंड इस वेस्ट से जनरेट कर पाऊँ कि एटलीस्ट एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाऊँ। क्योंकि इन बच्चों को अगर प्रॉपर नरिश करना है ना तो आप 2 घंटे में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इनका रेजिडेंशियल स्कूल होगा और वहाँ मैं बच्चों को नरिश करूँगा प्रॉपर, अपने एजुकेशन में जो चेंजेस मुझे लगते हैं लेके आने वाले। एक्चुअली है क्या कि गुरु की तलाश किसे नहीं होती, मुझे भी गुरु की तलाश थी, लेकिन जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे गया मुझे गुरु मिले, गुरु नहीं मिले। पर ज़रूर मैं चाहूँगी आप ज़रूर दिखा दिए, ਬੱਚੋਂ से हम लोग ज़रूर बात करेंगे। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ 15 ਤੱਕ ਟੇਬਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਪੱਲਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੱਲਵੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? अच्छा लगता है। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ? पहले तो घर पे ही रहते थे। घर पे ही रहते थे। मम्मा पापा क्या करते हैं? मम्मा जो उसका दुकान संभालते हैं, मेरे पापा कहीं और गए हैं। ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਕਲੋਥਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੱਟਿਆ ਫਟਿਆ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥੈਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੈਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੋ ਡੰਪਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਗਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਕਟਿੰਗਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਬੈਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਦੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ NGO ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵਿਦ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਹੀਵਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ।